Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the question answer of chapter 9, Madam Ride the Bus. The remaining question answer. Our first question, that is, find the line in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. आपने टेक्स्ट से वो लाइन ढूंढनी है जिससे ये पता चलता है कि वल्ली जो है वो बस राइडिंग की बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट उसने ली, बहुत ज़्यादा आनंद लिया. सो ड्यूरिंग द चैप्टर वी फाइंड दैट वल्ली एन्जॉयड हर बस जर्नी सो मच एज सी सा in one side there was a long line of palm trees, and in another side there was a canal. And she also enjoyed the scene of grassland, which was so green till that place where her sight could reach. जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी वहाँ तक वो हरियाली हरियाली उसने दिखाई दी. एक तरफ उसने नहर का आनंद लिया, एक यानी रोड के एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ जो पाम के पेड़ थे उनकी लाइन उसे दिखाई दी. And it was very wonderful scene for her as she felt sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. Means she thought that bus would collide with other vehicle, but the bus didn't collide with other. It was हर इमेजिनेशन, ये उसकी केवल कल्पना मात्र थी. उसे ऐसा लगा कि बस टकराएगी लेकिन वो नहीं टकराती थी, because the driver was there to drive the bus properly, and it seems that it would cross the path which was there for pedestrian. जो पैदल यात्रियों के लिए था ये उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ. And she also saw one of the cow which was having her tail on its back and was running in front of the bus. She also enjoyed that scene so much. वली ने देखा कि एक गाय जो है वो बस के सामने भाग रही थी, बिल्कुल उसके सामने, और भागते भागते वो उसके बस के बिल्कुल आगे आई हुई थी. और उसे देखकर वली को बहुत एन्जॉयमेंट फील हुई कि किस तरह से वो बस के आगे दौड़ रही थी, कैसे बस को के साथ मुकाबला कर रही थी. सो दिस all these things seemed so interesting, so enjoyable, and those scenes were enjoyed by her in very enjoyable way. बहुत ही आनंद पूर्वक ढंग से उसने उन सब दृश्यों का नज़ारा लिया जो उसने देखने को मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक. हियर यू आर वाचिंग क्वेश्चन नंबर 6. शी रिफ्यूजेज टू लुक आउट of the window while coming back because at one point near the road she saw the same cow which was running in front of the bus while going to town. The same cow was lying near the road, and that cow was there in dead position, and the cow had lost her charm and attraction at that time. So she became so sorrowful and she became so depressed to see that scene of dead cow. So due to that reason she refused to look out of the window while coming back. इसी कारण उसने खिड़की से बाहर झांकना मना कर दिया वापस आते वक्त. Next, what does Wali mean when she says, I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge. While after coming back,
यानी एक इस क्वेश्चन का मतलब एक बार मैं बता देता हूँ, आगे फिर आंसर की तरफ फिर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि वल्ली का मतलब, ये जो वर्डिंग दी हुई है इस वर्डिंग से वल्ली का मतलब क्या है। तो वर्डिंग क्या है कि मैं आपसे सहमत हो रही थी जो आपने कहा कि हमारे पास आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट जाती हैं, कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनका हमें कोई ज्ञान नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता कि वो चीज़ कब और कैसे वो घटना घटी। तो वल्ली इस बात से सहमत थी। ये बात वल्ली की पड़ोस में रहने वाली किसी आंटी ने बताई थी, तो वल्ली उसकी बात से सहमत थी, जो उसकी मदर को उनके पड़ोस में रहने वाली आंट बता रही थी इस बात को। तो वो कहती है कि हाँ, मैं सहमत हूँ कि हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका हमें कोई मालूम नहीं होता। तो इस बात से वल्ली का क्या मतलब है, ये पूछा गया है। इस बात से वल्ली का बहुत बड़ा मतलब है। क्यों? बिकॉज वल्ली हैड सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस at the same time while coming back from town. Means she reached in the town, she came back from town, but they didn't know that she had gone and come from the town. So that was a such type of incident which Wali had experienced in such a way recently. So because of that reason, Wali was fully agreed with the wording of that lady who was saying this type of statement to her mother. तो वर्ली जो है इस बात से सहमत थी कि घटनाएं घट जाती हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि अभी अभी हाल में ही उसने ऐसा एक्सपीरियंस ग्रहण किया है जिसमें वर्ली जो है वो पूर्ण रूप से एक किस्म से विटनेस थी, एक गवाह थी कि उसने अभी हाल में ही अपने साथ हुई जो घटना थी उसको देखा था। क्योंकि वो क्या नाम है, ये बस में उसने बस राइडिंग की, लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि वल्ली ने बस राइडिंग की थी। तो ये घटना वल्ली को तो पता था कि उसने बस राइडिंग की, लेकिन उसकी मदर और उसकी आंट को पता ही नहीं था कि वल्ली जो है उनकी नॉलेज के बगैर बस राइडिंग की है और टाउन में घूमकर आई है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज लाइक दैट। इसका जवाब इस तरह से था जो आपने सुना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग दैट वल्ली सेज फ्रॉम एन 8-year-old पॉइंट ऑफ व्यू। कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर हिज स्टेटमेंट। ऑथर जो है इन चीज़ों को वल्ली किस तरह से देखती है, 8 साल का बच्चा किस तरह से देखता है, उसके ढंग से डिस्क्राइब करता है। तो कहता है कैन यू फाइंड एविडेंस, क्या आप कुछ घटनाएं, कुछ तथ्य, कुछ सबूत टेक्स्ट से ढूंढ सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए। तो कह सकते हैं कि ऑथर डिस्क्राइब सम ऑफ द सीन ऑफ दिस स्टोरी through the medium of 8-year child whose name was Wali। वो इस कहानी में कुछ तरह से 8 साल के बच्चे के माध्यम से शो करता है, प्रस्तुत करता है हमारे सामने। एंड वी कैन टेक अप द एग्जाम्पल व्हेन ही सेज शी वाज फैसिनेटेड बाय द बस, यानी वो बस से अट्रैक्टेड हुई। And watching the bus fill a new set of people each time was a source of unending joy for her. Means each time when she saw that a new set of people
journeyed in that bus. यानी अब वो ऑथर जो है बताता है वल्ली के माध्यम से कि किस तरह से वो लोगों को देखती थी, नए नए लोगों का सेट बनकर किस तरह से बस में सवार होते थे, कैसे बस से सवार होकर वापस आते थे। तो इस तरह से वो वल्ली के माध्यम से ये नज़ारा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। And when the author describes the bus, he stresses on the color and look of the new bus. वो डिस्क्राइब करते वक्त जो है बस को डिस्क्राइब करते हुए तब भी वली का ही सहारा लेता है, उसी को माध्यम बनाता है। लाइक सिल्वर बस बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलर, क्योंकि बच्चा जो है वो बस के कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड द सीट्स वर कंफर्टेबल एंड सो लग्जरियस, that was also shown through the medium of Valli. And he also showed the scene of that cow which was running in front of the bus. And he also described the bus which seemed Valli that it would collide with other vehicle, but it did not collide. And he also described the outside scene where the line or row of palm tree seemed to running behind the bus. Actually they were not running. It is a common trend when anything in movement, then the other thing which are in fixed position, they seems to run behind us. So same thing happened with Wali also, and it had been shown by the author in proper way थ्रू द मीडियम ऑफ वल्ली। वल्ली के माध्यम से किस तरह से वो दिखाता है कि किस तरह से पाम के पेड़ जो लाइन में उगे हुए थे वो कैसे बस के पीछे दौड़ते हुए नजर आए। वास्तव में वो दौड़ नहीं रहे थे, वो स्थिर थे, लेकिन ये एक ट्रेंड है, एक क्या बोलते हैं साइंटिफिक ट्रूथ है कि वो हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब कोई मूविंग व्हीकल होता है, तेज़ स्पीड से चल रहा होता है, तो दूसरी चीज़ें उसके पीछे दौड़ती हुई, उसकी बैक साइड में दौड़ती हुई, उसके अपोजिट साइड में दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअली वो दौड़ती नहीं होती, वो वास्तव में फिक्स होती हैं, लेकिन ऐसा होता है, दिखाई देता है, आभास होता है। तो वो दृश्य भी ऑथर जो है वल्ली के माध्यम से ही हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और दूसरा, वो जो काऊ, जो गाय बस के आगे दौड़ रही थी, उस दृश्य को भी वल्ली के द्वारा ही हमारे सामने एक्सप्रेस किया गया है, रखा गया है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8-year-old पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह से वो 8 साल के बच्चे के माध्यम से हमारे सामने वो चीज़ें प्रस्तुत करता है। नहीं तो अगर वो 8 साल का बच्चे के माध्यम से ना करता तो वो पेड़ों को दौड़ता हुआ नहीं दिखाता, क्योंकि मैच्योर्ड पर्सन को तो पता होता है कि पेड़ जो है वो नहीं दौड़ते, बल्कि जिस व्हीकल में हम बैठे होते हैं वो दौड़ रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है स्पीड से। सो the answer of this question was like that, which you listen. I hope that you will try to understand all the answer of this question. So till this place you will write down all the questions. These were important questions which were there in your textbook. Okay, thank you.